न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। रात के 10 बज चुके हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दमदार 10 में आज प्रमुख तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा की। जो बाइडेन से मुलाकात, क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक, चीन को घेरने की रणनीति पर मंथन, कोरोना से निपटा कैसे जाए और साथ ही चीन की चुनौतियों से पार कैसे पाया जाए, अफगानिस्तान में क्या हो दमदार रणनीति, इस पर भी चर्चा होगी। जो बाइडेन से होने वाली खास मुलाकात पर भी नजर रहेगी। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी का संबोधन। भारत में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। भारत में कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। 20 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को दोनों डोज लग चुके हैं। हम वैक्सीन उत्पादन की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित की। तो वैक्सीनेशन अभियान भारत में कितना कारगर रहा है, भारत ने क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, कैसे ये विश्व के लिए काफी अहम है, इस बात का जिक्र किया है ग्लोबल वैक्सीन समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन। भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी का ये संबोधन है और भारत की उपलब्धियां, खासतौर पर अहम कामयाबियां जो भारत ने हासिल की हैं हाल फिलहाल में, वैक्सीनेशन की रफ्तार को जिस तरीके से स्पीड अप किया गया है, इसका जिक्र भी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। The COVID-19 pandemic has been an unprecedented disruption, and it is not yet over. Much of the world is still to be vaccinated. That is why this initiative by President Biden is timely and welcome. Excellencies, India has always seen humanity as one family. India's pharmaceutical industry has produced cost-effective diagnostic kits, drugs, medical devices, and PPE kits. These are providing affordable options to many developing countries, and we have shared medicines and medical supplies with over 150 countries. 2 indigenously developed vaccines have received emergency use authorization in India, including the world's first DNA-based vaccine. Several Indian companies are also involved in licensed production of various vaccines. Earlier this year, we shared our vaccine production with 95 other countries and with UN peacekeepers. And like a family, the world also stood with India when we were going through a second wave. For the solidarity and support extended to India, I thank you all. Excellencies, India is now running the world's largest vaccination campaign. Recently, we vaccinated about 25 million people on a single day. Our grassroots level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. Over 200 million Indians are now fully vaccinated. This has been enabled through the use of our innovative digital platform called CoWIN. In the spirit of sharing, India has made CoWIN and many other digital solutions available freely as open source software. Excellencies, as newer Indian vaccines get developed, we are also ramping up production capacity of existing vaccines. As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open.
With our Quad partners, we are leveraging India's manufacturing strength to produce vaccines for the Indo-Pacific region. India and the South Africa have proposed a TRIPS waiver at the WTO for COVID vaccines, diagnostic and medicines. This will enable rapid scaling up of the fight against the pandemic. We also need to focus on addressing the pandemic economic effects. To that end, international travel should be made easier through mutual recognition of vaccine certificates. Excellencies, I once again endorse the objectives of this summit and President Biden's vision. India stands ready to work with the world to end the pandemic. Thank you. Thank you very much. और चलिए बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की। चीन की चालबाजी के खिलाफ दुनिया के ताकतवर मुल्क एकजुट हो रहे हैं। ड्रैगन के खौफनाक प्लान को वक्त रहते ध्वस्त करने के लिए हिंदुस्तान ने भी हुंकार भर दी है और इसी मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। इस विजिट में पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी, तो साथ ही क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी पीएम मोदी मिलेंगे। आखिर पीएम मोदी का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है और कैसे चीन को काउंटर करने के लिए विश्व की बड़ी ताकतें क्या प्लान बनाने जा रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की पूरी डिटेल हम आपको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के भीतर अमेरिका पहुंचने वाले हैं, जहां अमेरिका और भारत की दोस्ती की नई बुनियाद रखी जाएगी। पीएम मोदी पहली बार जो बाइडेन से आमने सामने मिलेंगे और इस मुलाकात के बीच पीएम मोदी उस क्वाड समिट में भी शरीक होंगे, जिसे लेकर चीन की टेंशन बढ़ गई है। आखिर क्वाड को लेकर चीन इतना परेशान क्यों है, पाकिस्तान और तालिबान को डर क्यों लग रहा है, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आप पहले देखिए। ग्लोबल मीटिंग के ग्लोबल एजेंडे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा शुरू हो चुका है। अगले 3 दिन के भीतर अमेरिका उस ऐतिहासिक बैठक का केंद्र बनेगा, जिस बैठक पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। 24 सितंबर को अमेरिका में क्वाड समिट है, जिसमें क्वाड के सदस्य देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक से पहले ही चीन की टेंशन हाई है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान में क्वाड मीटिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। सवाल है कि आखिर क्वाड समिट में दुनिया के सुपर पावर मुल्क ऐसे कौन से एजेंडे पर फैसला करने वाले हैं, जिसे लेकर चीन को अपनी चौधराहट पर संकट नजर आने लगा है। ये समझने के लिए क्वाड का मकसद और इसका एजेंडा समझना जरूरी है, जिसकी बैठक में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शरीक होंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी इस बैठक में शामिल होंगे। 24 सितंबर को यह पहली बार होगा जब क्वाड के सदस्य देशों के ये 4 नेता एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब तक पीएम मोदी के अलावा जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन और योशिहिदे सुगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही क्वाड बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन इस बार क्वाड देशों के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक दूसरे के आमने सामने बैठक कर अपने एजेंडे पर बातचीत करेंगे। खास बात यह है कि क्वाड सदस्यों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में ये जो बैठक होने जा रही है, इसकी मेजबानी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बार क्वाड का एजेंडा काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होने वाला है, जो कि विकास की कड़ियों को जोड़ने वाला है। For their benefit and for the benefit of the world. I think a term like NATO is very much a Cold War term looking back. I think Quad looks in the future. It reflects globalization. It reflects the compulsions of countries to work together. And if you look at the kind of issues Quad is focused on today, vaccines, supply chains, education, connectivity,
I can't see any relationship between such issues and NATO or any other kind of organizations like that. So I think it's important not to misrepresent what is the reality out there. क्वाड की बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की दुनिया में किरकिरी हो रही है। सऊदी अरब से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को हटाने के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। खुद अमेरिका को चीन से लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए क्वाड समिट काफी अहमियत वाला है। इन सब के बीच अफगानिस्तान में नई परिस्थितियों की वजह से हिंदुस्तान के लिए नया चैलेंज पैदा हो गया है। अफगानिस्तान में चीन को विस्तार करने का मौका मिला है। अफगानिस्तान में चीन, पाकिस्तान और तालिबान की टिकड़ी ने हिंदुस्तान के सामने नया संकट पैदा कर दिया है। चीन की तालिबान से बढ़ती नजदीकी के बाद अमेरिका को अलकायदा और ISIS के फिर से मजबूत होने का डर सताने लगा है। वहीं भारत को कश्मीर में आतंकवाद के नए दौर की शुरुआत होने की आशंका है। खास बात यह है कि क्वाड की ये बैठक एक साल में दूसरी बार होने जा रही है। इससे पहले मार्च महीने में तमाम क्वाड के राष्ट्राध्यक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था और एक बहुत बेहतर बैठक हुई थी। लेकिन जिस तरह से माहौल बदल रहा है, जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, तो उसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने यहाँ ही ये दूसरी बैठक बुला ली है। बड़ी बात यह कि क्वाड समिट से अलग सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच 1-to-1 की अलग से मुलाकात भी हो सकती है। यानी क्वाड समिट के बाद पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 1-to-1 मुलाकात होगी। इसके अलावा मोदी जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी 1-to-1 की मीटिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी पीएम मोदी की 1-to-1 मुलाकात होने वाली है। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच पिछले 8 महीने के भीतर 2 बार वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच आमने सामने मुलाकात पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान पहली बार होगी। सितंबर महीने की शुरुआत में जब ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री दिल्ली दौरे पर आई थी, तब क्वाड से चिंतित चीन को उन्होंने क्या जवाब दिया था, वो सुनिए। Quad members are champions of ASEAN centrality. We actively engage in that ASEAN-led architecture. We're committed to supporting the practical implementation of the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. I'd also say that we have a positive and practical agenda. Minister Jaishankar has mentioned a number of those initiatives around vaccines, around climate, around critical technology, also trying to address some of the dangerous disinformation that pervades the world's experience in relation to the pandemic. 24 सितंबर को अमेरिका में जो क्वाड समिट होने वाला है, उसके फ्रेमवर्क में अब तक जो एजेंडा सामने आया, उसके मुताबिक समिट में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और कोरोना संकट पर सदस्य देश बातचीत कर सकते हैं। खासतौर पर कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर आपसी सहयोग को लेकर भी बातचीत हो सकती है। कोरोना काल के बीच क्वाड की ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि कोरोना काल ने पूरी दुनिया में हालात और भविष्य की प्लानिंग पूरी तरह से बदल दी है। इस वक्त दुनिया के बड़े देशों के सामने कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती है। चीन को लेकर दुनिया भर के देशों का नजरिया और सोच में तब्दीली आई है। अफगानिस्तान में बदले हालात और तालिबानी कब्जे के बाद आतंकवाद का मुद्दा फिर दुनिया के सामने गहरा होने लगा है। जाहिर है ऐसे तमाम मुद्दे क्वाड की बैठक से लेकर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली यानी UNGA की बैठक में भी उठने वाले हैं, जिसे पीएम मोदी 25 सितंबर को संबोधित करने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। क्वाड समिट में पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब ड्रैगन की आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु पनडुब्बी का ऑकस समझौता किया है। इससे एक कदम आगे बढ़कर अब क्वाड समिट में चीन पर वज्रपात करने के महाप्लान को अमली जामा पहनाया जा सकता है, जिसमें चीन को न सिर्फ सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर बल्कि चौतरफा घेरने की रणनीति बन सकती है। 24 सितंबर 2021 वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए ये तारीख बेहद अहम साबित होने वाली है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की होने वाली ये शिखर बैठक क्वाड के इतिहास का एक अहम पन्ना होगा। इस दिन क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका में आमने सामने बैठकर विस्तारवादी चीन की घेराबंदी का मास्टर प्लान बनाएंगे। वो चीन जो ग्लोबल कंपटीशन में सुपर पावर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना है, जो अफगानिस्तान में तालिबान की आतंकी हुकूमत का रहनुमा बनकर
भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरे बढ़ा रहा है, तो साथ ही भारत के साथ लगती सीमा पर चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा, जिसने दक्षिण चीन सागर के समंदर में अपने नापाक विस्तारवादी मंसूबों से जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक को परेशान कर रखा है। उसी चीन पर नकेल कसने की रणनीति बनेगी क्वाड की इस बैठक में। क्वाड मीटिंग में एक एक्शन प्लान तैयार होगा जिसमें चीन को साउथ चाइना सी में कैसे चुनौती दिया जा सकता है, इस पर पूरी तरह से चिंतन होगी। वैसे तो क्वाड की इस मीटिंग में जो अहम मुद्दे होंगे उनमें कोरोना की रोकथाम और वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाना है, समुद्री सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी में साझेदारी बढ़ाना है, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर मुकाबला करना है, लेकिन सबसे अहम एजेंडा होगा अफगानिस्तान में चीन पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका पर रणनीति बनाना, इंडो पैसिफिक रीजन में ड्रैगन की दादागिरी को रोकना। क्वाड की इस बैठक में इंडो पैसिफिक के साझा रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए ताना बाना बुना जाएगा। इसके अलावा सैन्य इंटर ऑपरेटिबिलिटी यानी एक दूसरे के सैन्य उपकरणों के जल्द से जल्द इस्तेमाल और सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर भी खाका खींचा जाएगा। जहाँ तक अमेरिका का जो दृष्टिकोण है, वो देखने का तरीका है, वो ये है कि शिफ्ट जो हो रहा है वो अटलांटिक से अभी इंडो पैसिफिक में जा रहा है। द ग्लोबल पावर बैलेंस जिसको बोलते हैं वो शिफ्ट हो गया है इंडो पैसिफिक को, और अभी अमेरिका का ध्यान इस तरफ आएगा। ये भारत के इंटरेस्ट को सूट करता है क्योंकि चाइनीज़ का जो अग्रेसिव बिहेवियर है इंडो पैसिफिक में, खास करके साउथ चाइना सी में, उसको कंटेन करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और क्वाड एक ऐसा ग्रुपिंग है जो चीन को कंटेन कर सकता है। क्वाड के सदस्य चारों देशों के बीच आपसी रिश्ते पहले से ही मजबूत रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन की आक्रामक हरकतों ने इन्हें अब एक दूसरे की ओर भी करीब ला दिया है और रणनीति एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक में ज्यादा से ज्यादा सैन्य सहयोग बढ़ाने की है। लेकिन क्वाड के समिट में चीन की घेराबंदी को लेकर ही रणनीति क्यों बनेगी, उसे ऐसे समझिए। भारत के लिए चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत स्ट्रैटेजिक चुनौती है। पिछले एक साल में भारत को लद्दाख सीमा पर चीन से चुनौती मिल रही है। चीन हिंद महासागर में ट्रेड रूट्स पर भी अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को कूटनीतिक राजनयिक मोर्चे पर चीन की तरफ से जबरदस्त चुनौती मिल रही है, लिहाजा अमेरिका की पॉलिसी चीन को काबू में करने की है। क्वाड को अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में चीन पर नकेल कसने के कारगर हथियार के तौर पर देखता है। जापान पिछले एक दशक में चीन की विस्तारवादी नीति से सबसे ज्यादा परेशान रहा है। जापान के सेनकाकू द्वीप समूह पर चीन अपना दावा जताता है। ऑस्ट्रेलिया को पहली चुनौती चीन से जारी ट्रेड वॉर की है। इसके साथ ही अपनी जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स में चीन की बढ़ती रुचि और यूनिवर्सिटियों में बढ़ते उसके प्रभाव की भी चिंता है। दूसरी ओर दक्षिणी चीन सागर में बीजिंग का आक्रामक रवैया जारी है। चीन दक्षिण चीन सागर के 1.3 मिलियन स्क्वायर मील क्षेत्र पर अपना दावा जता रहा है, जहां के समंदर में कृत्रिम द्वीप पर मिलिट्री बेस भी बना रहा है, जिस पर ब्रुनोई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी दावा करते रहे हैं। साफ है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह से चीन तनाव भड़का रहा है, उसे काउंटर करने के लिए क्वाड जैसी बैठक जरूरी है। लेकिन क्वाड की इस बैठक से पहले ही चीन को मिर्ची लग गई। क्वाड समिट पर निशाना साधते हुए चीन ने कहा कि दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए गुटबाजी काम नहीं आएगी। 中方一贯认为，任何地区合作机制都应顺应和平与发展的时代潮流，有助于增进地区国家间的互信与合作，不应针对第三方或损害第三方的利益，搞封闭、排他、针对他国的小圈子，违背时代潮流，与地区国家的愿望背道而驰，不得人心，也没有出路。 चीन शुरू से ही क्वाड को 4 विरोधी देशों का समूह मानता रहा है। उसे लगता है कि क्वाड के ये 4 देश उसकी बढ़ती ताकत के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। क्वाड के देशों ने सैन्य क्षेत्र को लेकर कभी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिए, पर यह माना जाता है कि दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाना इन देशों की एक बड़ी प्राथमिकता है और इससे भारत को भी सामरिक और आर्थिक लिहाज से बड़ा फायदा होगा। ये विश्व ज्ञात है कि चीन
हमारा और अमेरिका दोनों का दुश्मन है। चीन अमेरिका को परास्त करना चाहता है और विश्व का सुपर पावर नंबर 1 बनना चाहता है। चीन हमारा दुश्मन है क्योंकि वो समझता है कि एशिया में उसको कोई चुनौती दे सकता है तो सिर्फ हिंदुस्तान है। तो इसीलिए वो हिंदुस्तान को घुटने टेकवाने चाहता है कि तुम सरेंडर करो और हमारी भाषा इस्तेमाल करो। तो ये चीन की रणनीति है। तो यदि विश्व के 2 शक्तिशाली देश मिल जाएं और चीन को सबक सिखाने की रूपरेखा तैयार करें तो ये बहुत शुभ होगा। क्वाड की इस बैठक में ग्लोबल ट्रेड में चीन के बढ़ते एकाधिकार पर भी चर्चा होगी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो क्वाड के सदस्यों में शामिल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान तीसरी और भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया भी एक विकसित देश है। इतनी बड़ी आर्थिक ताकतें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन के बढ़ते असर और उस पर निर्भरता को कम करने के इरादे से अमेरिका में इकट्ठा हो रही हैं। दरअसल कोरोना महामारी का बहाना बनाते हुए चीन ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टरों की सप्लाई रोक दी है। इन्हीं सेमीकंडक्टरों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रिक कारों, मोबाइल कंप्यूटर में लगने वाली चिप का निर्माण होता है। ऐसे में दुनिया भर में चिप वाले उत्पादों की सप्लाई पर संकट खड़ा हो गया है। क्वाड समिट में सप्लाई चेन को भी दोबारा शुरू किए जाने पर बात होगी। इसके अलावा चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का मुकाबला करने के लिए चारों देश अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सप्लाई चेन पर भी बातचीत कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। क्वाड के ये देश जल्द ही मालाबार वॉर एक्सरसाइज के जरिए एक साथ आने जा रहे हैं, जो इस साल जापान के पास प्रशांत महासागर में होने जा रही है। इससे पहले हाल ही में भारत और अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ सैन्य अभ्यास किया है, जिससे चीन बुरी तरह चिढ़ा है। आइए अब क्वाड के देशों की सैन्य ताकत और चीन की सैन्य ताकत को देखते हैं और समझते हैं कि इससे भारत की ताकत कैसे बढ़ने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए ये पूरी तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए आप देखिए, क्वाड देशों के पास 27 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन के पास 2, यानी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। क्वाड काफी ताकतवर। वहीं सबमरीन की अगर बातचीत करें, क्वाड देशों को मिला लिया जाए तो कुल 108 सबमरीन हुई, जबकि चीन के पास सिर्फ 74। आप सोचिए भारत की ताकत कितनी बढ़ने वाली है। फाइटर प्लेन की अगर बातचीत करते हैं, क्वाड देशों के पास 2984 फाइटर प्लेन्स हैं, जबकि चीन के पास 1232 फाइटर प्लेन्स हैं। सिर्फ इतने ही हैं। आगे बढ़ते हैं, टैंक की अगर बातचीत करते हैं तो क्वाड देशों के पास कुल मिला लिया जाए 11,644 टैंक मौजूद हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 3500 टैंक मौजूद हैं। भारत की ताकत क्वाड देशों के साथ कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। कुल सैनिकों की तादाद की बातचीत करें, क्वाड देशों के पास 31,51,160 सैनिक मौजूद होंगे इस रीजन में। वहीं चीन के पास 21,83,000 सिर्फ जो है वो सैनिक मौजूद होंगे। तो ये कुल सैनिकों की तादाद के लिहाज से भी चीन पिछड़ने वाला है। अफगानिस्तान में अमेरिका की खाली जगह चीन ने ले ली है। इसका सीधा असर वर्ल्ड ऑर्डर पर देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में आलोचना का सामना कर रहे जो बाइडेन प्रशासन अब हर हाल में चीन को काउंटर करने की योजना पर जोर लगा रहा है। लिहाजा क्वाड समिट के अलावा पीएम मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय मीटिंग में भी अफगानिस्तान और वहां चीन पाकिस्तान की भूमिका का मुद्दा छाया रहने वाला है। अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ये उड़ान तेजी से बदल रही दुनिया में भारत की आन बान और शान के साथ ही महाशक्तियों के बीच भारत की पहचान को दमदार तरीके से दर्ज कराएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा कई मायनों में खास है। कोरोना काल के बाद ये सबसे बड़ा विदेशी दौरा है। वहीं जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की उनसे आमने सामने पहली मुलाकात है और इसी मुलाकात में अफगान संकट को लेकर रणनीति बनेगी ताकि इसे आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनने से रोका जा सके। ये रणनीति अफगानिस्तान में आतंक की तिकड़ी के खिलाफ बनेगी। अफगानिस्तान में तालिबान की आतंकी हुकूमत सत्ता पर कायम है। तालिबान के बाद अफगानिस्तान में दूसरा विलेन आईसिस के यानी आईसिस खुरासान है। अफगानिस्तान में आतंक का तीसरा बड़ा खतरा अल-कायदा है। अफगानिस्तान के ये तीनों आतंकी संगठन भारत और अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द है। चीन की तालिबान से बढ़ती नजदीकी के बाद अमेरिका को अल-कायदा और आईसिस के फिर से मजबूत होने का डर सताने लगा है। वहीं भारत को कश्मीर में आतंकवाद के नए दौर की शुरुआत होने की आशंका है। इस बीच अब खुलासा हुआ है कि चीन के खुफिया और सैन्य अधिकारियों ने पिछले हफ्ते अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस का गुपचुप दौरा किया। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक था। बताया जा रहा है कि चीनी जासूस वहां पर
तालिबान और पाकिस्तान की मदद से एक खुफिया केंद्र बनाने गए थे। ये जग जाहिर है कि भारत चीन और पाकिस्तान का साझा दुश्मन है और अमेरिका चीन का दुश्मन नंबर 1 है। ऐसे में जाहिर है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत और अमेरिका के खिलाफ हो सकता है। लिहाजा पीएम मोदी क्वाड समिट में शिरकत करने के अलावा जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तब इन दोनों ही बैठकों का अहम एजेंडा अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की भूमिका होगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कहा था कि बाइडेन प्रशासन अफगानिस्तान पर कड़ी नजर रखेगा और उसे आतंकी संगठनों का अड्डा नहीं बनने देगा। वहीं पीएम मोदी भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर अपना रुख पहले ही साफ कर चुके हैं। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया। अफगानिस्तान पर हुए SCO-CSTO आउटरीच समिट में पीएम मोदी ने तालिबान शासन में महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने यूएन से इस मसले पर हस्तक्षेप की मांग की थी और कहा था कि तालिबान सरकार को मान्यता देनी है या नहीं, ये वैश्विक स्तर पर तय होना चाहिए। रक्षा जानकारों का कहना है कि पिछले महीने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के बाद से भले ही अमेरिका अफगानिस्तान में कम दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में चीन की बढ़ती सक्रियता अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली है। ड्रैगन ने तो नई तालिबान सरकार को $3.1 करोड़ के पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। अफगानिस्तान को लेकर चीन, ईरान और पाकिस्तान एक हो गए हैं। अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की ये जुगलबंदी न सिर्फ भारत की टेंशन बढ़ाने वाली है, बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है। अपनी बदली हुई रणनीति के तहत अमेरिका क्वाड की मजबूती को चीन की कमजोरी के तौर पर देखता है। इसीलिए अफगानिस्तान में क्वाड के अहम मेंबर भारत की चुनौतियों से अमेरिका के लिए आंखें मूंदना आसान नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।